Now in general terms, can anybody tell what do you understand by the grammar? What is the grammar? Why we are using the grammar? What is the purpose of the grammar? Can anybody define? किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Why we are using the grammar? Like in general terms, English, हिंदी, मैथमेटिक्स, किसी भी फॉर्म में आप बता सकते हो. Whatever you know. Basically, grammar is a set of rules which is used for the conversation. Means if I want to talk with you, then we have to know some language, or you can say so for the conversation between two or more than two person, we need some language. And if you know the language, if you want to learn the language, then you should know what is the basic rules of that particular language. Means automatically कोई भी language नहीं बन जाती है, उसके लिए कुछ set of rules है. Suppose if you want to learn English, then you must know the ABCD. And combination of ABCD you can say words, and words के combination से आपने क्या बनाया, sentence बनाया, then paragraph बनाया. तो these are the rules of that particular language. Similarly यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, we are learning the some languages for the computer. तो यहाँ पर एक राइटर थे, that is called the नोम चॉम्स्की. उन्होंने यहाँ पर कुछ set of rules बनाए to define the grammar for the computer language. And that grammar is called, यहाँ पर देखेंगे different types के हम यहाँ पे grammar पढ़ेंगे. Till now we have learned the regular grammar, and अभी तक 2 यूनिट हमने करी है, तो हमने यहाँ पे regular grammar तक पढ़ी. तो that is nothing but if you want to define, if somebody asks what is the grammar, then you can say it is a set of rules which is used for conversation. I'm defining just for the normal way. I mean in daily basis में अगर हम बात करें कि grammar क्या है, grammar का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, then you can say कि grammar is nothing but the set of rules. Based on that rule, if I write here HELLO, then we know कि this is the meaningful word that is called the hello. But if you write here LLOPQR, if I write like that, then this is what here, this is the meaningless word. So you can create number of words, but all the words are not valid. Some are known as the valid word because we have defined the meaning of that particular word. That's the reason that is called the valid meaning here. But we don't know this word का meaning क्या है या combination क्या, how we going to pronounce this, so that we don't know because this is not available in your English dictionary. तो हम ये कहेंगे कि this is not the defined word. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, नोम चॉम्स्की ने यहाँ पे कुछ रूल्स बताए मैथमेटिकल वे में कि वो डिफाइन करना चाहते थे कि सपोज इफ़ यू वांट टू लर्न सम कंप्यूटर लैंग्वेज, वी मस्ट नो सम ग्रामर फॉर दैट. लाइक यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, तो देयर इज अ सम रूल्स. आई मीन सी के लिए हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करता है, उसमें जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर में होता है. यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ सेमी कॉलन लगेगा. दैट इज़ नथिंग बट द रूल फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन दैट. तो वो जो रूल्स हमने बनाए उसके लिए इन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए कि कैसे हम मैथमेटिकली. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नोम, आई एम राइटिंग, यू कैन राइट ऑल्सो हियर, नोम चॉम्स्की gave a mathematical model of grammar which is effective for writing computer language. एंड इन्होंने यहाँ पे 4 रूल्स बताए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की इन दिस सब्जेक्ट. देयर आर 4 types of grammar
according to Noam Chomsky. तो लेट्स सी कि वो 4 टाइप्स के ग्रामर क्या है. तो आई एम गोइंग टू मेक हियर वन टेबल. अभी इन सॉल्ट मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. 1 बाय 1 हम इसे डिटेल में देखेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे और एक एक टेक्निक यहाँ पर सीखते जाएंगे, क्योंकि अगले जो 3 चैप्टर हैं इसी चोमेस्की के ऊपर हैं. ऑलरेडी जो 2 हमने चैप्टर पढ़े हैं वो एक ग्रामर हो गया, दैट इज़ अ टाइप 3. दिस इज़ द ग्रामर टाइप. एवरीबडी राइट, आप अपनी कॉपी पे लिख लो ग्रामर टाइप. देन यहाँ पर ग्रामर एक्सेप्टेड, कौन सा यहाँ पर वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा. देन लैंग्वेज एक्सेप्टेड एंड देन ऑटोमेशन. नाउ फर्स्ट वन इज कॉल्ड द टाइप 0. Second is called type 1, then third is type 2, fourth one is type 3. Now the very first, that is the type 0. Type 0 is called here unrestricted grammar. And ये जो लैंग्वेज यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज हम लर्न करेंगे दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिवली. enumerable language, and इसके लिए ऑटोमेशन which what machine we are going to use, that is called the Turing machine. तो Turing we are going to design for this language, that is अभी तक हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने DFA और NFA डिज़ाइन किया. तो इस ग्रामर टाइप 0 के लिए हम जो मशीन यूज़ करेंगे दैट इज़ द ट्यूरिंग मशीन. नाउ टाइप 1 इज़ द कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. सेंसिटिव ग्रामर, और इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. एंड इसके द्वारा जो ऑटोमेशन हम यूज़ करेंगे मशीन, दैट इज कॉल्ड द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेशन. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सिलेबस में ये टाइप 1 ग्रामर नहीं है. वी विल लर्न दिस टाइप 0, टाइप 2 एंड टाइप 3. बट यू मस्ट नो कि टाइप 1 क्या होता है और इसके द्वारा कौन सा ऑटोमेशन है. वी मस्ट नो दैट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टाइप 2, दैट इज़ द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. By this grammar we will learn the context free language. By this grammar the language generated is called the context free language, which we are going to learn this time. The third unit is based on this language only. And जो ऑटोमेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड द पुश डाउन ऑटोमेटा. Type 3, already we learned that is called the regular grammar. And the language accepted by this grammar is nothing but the regular language. So already we learned that regular grammar and regular language. And the automation for this is called the finite automata, which we have used already to design, that is the DFA or NFA. Already we have learned that. So now these are the Noam Chomsky's 4 rules, that is the type 0, type 1, type 2 and type 3.
तो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉटम, नॉट द अपर, दैट मीन्स टाइप 0 से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से देखिए पढ़ना स्टार्ट किया था. दैट मीन्स हमने टाइप 3 लर्न कर लिया. अगर हमने रेगुलर ग्रामर पढ़ लिया तो दैट मीन्स वी हैव कवर्ड द टाइप 3. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कि रेगुलर ग्रामर क्या है एंड रेगुलर लैंग्वेज, और ऑलरेडी हमने ये चीज़ कर लिया. तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा CFG होगा, दैट इज़ द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप 2. एंड टाइप 1 जो है हमारे इसमें नहीं है, बट आपको डेफिनेशन ज़रूर बताऊंगी मैं कि ये क्या है. एंड देन द नेक्स्ट विल बी गोइंग टू लर्न, दैट इज़ द 5th यूनिट विल बी नथिंग बट द टाइप 0. तो ओके, स्टार्ट फ्रॉम द टाइप 3. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द ग्रामर. जस्ट नाउ आई टोल्ड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइप, सॉरी ग्रामर क्या है. तो आई टोल्ड कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज फॉर द कन्वर्सेशन. नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रामर क्या है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ग्रामर. हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द ग्रामर, कि ग्रामर क्या है. जैसे अभी हमने बात करी कि इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स, बट हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस चैप्टर. मैथमेटिकली हम इसे कैसे करेंगे. जैसे DFA एंड NFA में हमने देखा कि 4 टपल्स होते हैं, सॉरी 5 टपल्स होते हैं. Now in the grammar we are going to use here the 4 tuples. So a grammar G can be formally described using 4 tuples as G equal to VTSP, where V क्या है वो देखते हैं यहाँ पर. What we are like in DFA we have used Q, sigma, delta and then Q naught and then final state. There are 5 tuples. इसी तरह से आपने मिले एंड मूर में देखा, आपने 6 tuples पढ़ा. बट इन ग्रामर वी आर गोइंग टू यूज ओनली द 4 टपल्स. ये 4 टपल्स होंगे और हर टपल्स की हम मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज दिस. तो V इज नथिंग बट द सेट ऑफ वेरिएबल्स. इसे हम सेट ऑफ वेरिएबल्स भी कहेंगे, बट जनरली वी नो दैट दिस इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल सिंबल्स भी आप बोल सकते हैं इसे. आई विल टेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन टर्मिनल. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे T. समटाइम्स इन द बुक यू विल सी दिस इज T और समटाइम्स दे कैन रिप्रेजेंट लाइक सिग्मा ऑल्सो. सिग्मा ऑलरेडी यू नो द अल्फ़ाबेट्स. तो जो टर्मिनल सिंबल का मतलब जो इनपुट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल, विच इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइड द फर्दर. तो दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे S जो है वो हमारा यहाँ पे इसे बोलते हैं स्टार्ट सिंबल. जिस तरह से आपने ऑटोमेटा में पढ़ा था कि Q नॉट इज द स्टार्टिंग स्टेट, यहाँ पर भी स्टार्ट सिंबल है. एंड दिस S बिलोंग्स टू कैपिटल B. आई मीन ये इसी का पार्ट होगा आपका. तो V में बहुत सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हो सकते हैं, उसमें से जिस सिंबल को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा इस पोजीशन पे, दैट विल एक्टिंग एज अ स्टार्ट सिंबल. आई मीन वो स्टार्टिंग स्टेट होगा उसका. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा P है. P को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे. P इज नथिंग बट द प्रोडक्शन रूल्स. जो काम वहाँ डेल्टा कर रहा था ट्रांजिशन स्टेट्स बताता है, यहाँ पे प्रोडक्शन की हम बात करेंगे. प्रोडक्शन रूल्स फॉर टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल्स. ये हमारा जो P है. नाउ लेट्स सी दैट कि P का और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि पूरी कहानी इसी P के ऊपर ही घूमेगी. A production rules has the form अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में मिलेगा आपको. अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड बीटा. तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपको डिराइव करेगा राइट हैंड साइड, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग्स ऑन V यूनियन T. आई मीन V क्या है, नॉन टर्मिनल सिंबल्स है, एंड T क्या है यहाँ पर, टर्मिनल सिंबल्स है.
तो अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग्स ऑन V यूनियन T and at least are symbol of alpha belongs to V. That means ये जो अल्फा और बीटा होंगे वो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे जो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हम ले रहे हैं, और यहाँ पे साथ में वो बोल रहा है कि एटलीस्ट वन सिंबल ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी। आई मीन अगर लेफ्ट हैंड साइड का एटलीस्ट एक सिंबल जो होगा वो वी में बिलोंग करेगा। कब, अब फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिया S टेंस टू ए बी, स्मॉल ए बी, तो ये स्मॉल ए बी जो स्मॉल लेटर्स यूज होंगे वो टर्मिनल सिंबल्स के लिए यूज होंगे, एंड जो कैपिटल लेटर्स यूज होंगे वो होगा हमारा नॉन टर्मिनल के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे V के जो सिंबल्स हो सकते हैं आपका A हो सकता है, B हो सकता है, C D S यहाँ पर ले लिया मैंने, तो अब ये सारे हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं एंड इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड। आई मीन ये फिर से डिवाइड हो सकता है, किसी और स्टेट को डिफाइन कर सकता है। टर्मिनल सिंबल्स दैट इज अ सिग्मा और टी, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे A B C D, जितने भी हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स देखे हैं वो सारे टर्मिनल सिंबल्स आएंगे। इवन लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ये सारे हमारे टर्मिनल सिंबल्स होंगे। एनीथिंग विच इज़ डिफाइंड इन द लोअर केस, और ये जितने कैपिटल लेटर्स यूज होंगे वो नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो होंगे फर्दर डिवाइडेड होंगे। लाइक सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिया S टेंस टू A B एंड A टेंस टू A एंड B टेंस टू बी कर दिया मैंने। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा अल्फा हो गया और ये राइट हैंड साइड हमारा बीटा हो गया। दिस कॉल्ड अल्फा, दिस वन इज बीटा। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर S से आप ए बी को डिराइव, आई मीन आपने यहाँ पे लिखा S टेंस टू ए बी, तो दैट वी आर गोइंग टू यूज। आई मीन ए को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस कैपिटल ए को यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट प्रोडक्शन गिवन है दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन हियर। तो नाउ ए की जगह हमने रख दिया ए, आई मीन वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए बी जो है बी टेंस टू बी ऑब्लिक बी है, तो आपने यहाँ बी को एज इट इज रख दिया। और नेक्स्ट अगर आप चाहें तो इस बी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर दिस वन और दिस वन। आई मीन बी को बी से रिप्लेस करिए या स्मॉल बी से रिप्लेस करिए, या आप बी को हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी कर सकते हैं। तो बी की जगह आप यहाँ पर ए बी रखा, नेक्स्ट टाइम आपने अगेन यहाँ पे क्या रखा ए, अगेन इस ए की जगह आप फिर से ए रख सकते हैं, बी की जगह आप ये तो आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर्स है विच इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनल सिंबल, इट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर नॉन टर्मिनल सिंबल्स और टर्मिनल सिंबल्स। आप देख सकते हैं कि कैपिटल बी एक टर्मिनल सिंबल भी हो सकता है। तो हम ये जो सब्सटीट्यूशन करते हैं हमारा टारगेट होता है स्ट्रिंग को अचीव करना, आई मीन स्ट्रिंग बनाना, लाइक लास्ट में सारे के सारे टर्मिनल सिंबल हो जाए, तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं वहाँ पर रखना। दैट इज कॉल्ड कि टर्मिनल सिंबल्स फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं लिया कि स्मॉल ए टेंस टू स्मॉल बी या स्मॉल ए टेंस टू कैपिटल ए, ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू वी, कैपिटल बी, एटलीस्ट वन सिंबल यहाँ पर हो सकता है। आप ऐसा प्रोडक्शन ले सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए टेंस टू बी ले सकते हैं। दैट इज पॉसिबल कि आपका, बिकॉज दिस इज द टाइप 3, आई मीन सिंपल ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, तो आपका टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट आप ये कहें कि ये वाली चीज़ यहाँ पर अलाउड होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। कि लेफ्ट हैंड साइड पे एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना जरूरी है, केवल टर्मिनल सिंबल होगा तो वो प्रोडक्शन अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर इन दिस मैथमेटिक्स। तो नाउ यहाँ पे ग्रामर हमने देख लिया कि ग्रामर क्या है बेसिकली। टिल नाउ एनीबडी हैव एनी क्वेरी कि ग्रामर के कितने टपल्स हैं? मैंने आपको बताया 4 टपल्स हैं। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल यहाँ पर कैसे ये गिवन होगा आपको यहाँ पर, देन वी विल सी द रेगुलर ग्रामर। लेट्स सी यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर जी गिवन है, तो जी में अभी देखिए मैंने 4 टपल्स आपको बताएं, तो यहाँ पर मान लीजिए एस ए बी, ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पर ले लिए। देन ये आपका सिग्मा हो गया, दैट इज अ टी जिसे हम कहते हैं एस। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है एस टेंस टू ए बी एंड ए टेंस टू स्मॉल ए एंड बी टेंस टू स्मॉल बी, ये।
तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो जी में हमारे पास 4 टपल्स थे, दैट इज अ वी, सिग्मा, पी, या आप कह सकते हो एस एंड पी लास्ट में लिख सकते हो, या एस पी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन इनके 4 नाम होने चाहिए, वी, सिग्मा। सिग्मा को मैंने बताया आप टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए वी की प्लेस पे ये 3 लोग बैठे हैं, दैट मीन्स वी इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एस ए बी। वी की वैल्यू ये हो गई। अगर हम सिग्मा की बात करें यहाँ पर या टी की बात करें तो स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए यहाँ पे टी को हमने बोला था टर्मिनल सिंबल्स, तो टर्मिनल सिंबल्स में आप देखिए लोअर केस ही गिवन होगा, नॉन टर्मिनल में हमेशा अपर केस के लेटर्स होंगे ना। अब यहाँ पे देखिए एस है, एस की जगह देखिए यहाँ पर हमने लिया था कि आप देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, 3 नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स है, एस ए बी। इन 3 में से कौन सा एज अ स्टार्टिंग सिंबल काम करेगा, तो यहाँ पर मेंशन होगा एस। सपोज एस की जगह यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सा बन गया, जनरली लोग एस एस करते हैं। आप यहाँ पे सपोज करिए एस ए बी में से यहाँ ए दे रखा है, दैट मीन्स आपका जो स्टार्टिंग सिंबल होगा, जैसे डीएफए में आप देखते थे क्यू नॉट में हमेशा लेती थी Q1 Q2 ऐसे करके, इसी तरह से फिर आपका जो स्टार्टिंग, यानी जब भी आप ग्रामर स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से फिर ए से करेंगे। अगर यहाँ पर एस मेंशन है तो आप स्टार्टिंग सिंबल से चलना चालू करेंगे, फिर एंड में चाहे जहाँ तक पहुँचेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एस। तो यहाँ पर देखिए एस मेंशन है तो मैंने वापस एस लिख दिया। तो इसका मतलब ये कि इन 3 नॉन टर्मिनल वेरिएबल में से एस इज एक्टिंग एज अ स्टार्ट सिंबल। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन में इतने सारे रूल्स, दैट मीन्स पी डिफाइंड एज, यहाँ पर ये 3 लोगों को उसने डिफाइन किया, ए बी, देन ए टेंस टू ए एंड बी टेंस टू बी। यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है। तो ये तो हुआ समझने के लिए कि ये 4 टपल्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे अगर कोई क्वेश्चन गिवन है। अब सपोज यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डेराइव द स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है। अगर हमें स्ट्रिंग डेराइव करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सी दैट कि हमारे पास अगर ये ग्रामर है तो इस ग्रामर की मदद से हम लैंग्वेज कैसे जनरेट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लैंग्वेज फ्रॉम दिस ग्रामर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या है, हमने यहाँ से देख लिया। इसका मतलब ये जो 3 प्रोडक्शन है इसमें से हम कौन सा स्टार्टिंग सिंबल लेंगे, दैट इज एस से लेंगे। एस को हम क्या रख सकते हैं, ए बी। एस टेंस टू ए बी है तो हम एस का इस्तेमाल करेंगे ए बी से। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, इट इज़ नॉट कॉल्ड द लैंग्वेज। लैंग्वेज कब होगा, जब हम इस प्रोडक्शन की मदद से एक स्ट्रिंग जनरेट कर लें। तो ए की जगह हम फ्रॉम दिस सेकेंड प्रोडक्शन वी कैन यूज़, ए की जगह हमने स्मॉल तो हमने यहाँ पे लिखा बाई एस टेंस टू ए बी हमने यूज़ किया। अब हम यहाँ पे बाई ए टेंस टू हम यहाँ पर ए रख देंगे एंड रिमेनिंग बी को एज इट इज़ 1 सिंबल एट ए टाइम रखेंगे ए। अब हम बी को रिप्लेस करने जा रहे हैं, बी टेंस टू बी का इस्तेमाल करके, तो ये हो जाएगा बी। यानी कि स्ट्रिंग क्या मिली मुझे, ए बी मिली विद द हेल्प ऑफ ए बी। अब आप देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम स्ट्रिंग भी यही होगा क्योंकि इससे हम कुछ भी एस टेंस टू ए बी रखेंगे। अब यहाँ पे राइट में है नहीं तो यानी अगेन ए बी को आप सब्सटीट्यूट करोगे यही आएगा, मैक्सिमम भी इसका ए बी ही आएगा। दैट मीन्स दिस ग्रामर इज जनरेटिंग एल ऑफ जी लैंग्वेज। इस ग्रामर की मदद से जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास केवल एक ही स्ट्रिंग आई, दैट इज अ ए बी। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर। आई मीन ये ग्रामर की मदद से जो हमने लैंग्वेज जनरेट करी। आई टोल्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, आई मीन फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज अ लैंग्वेज, इट इज नथिंग बट द set of strings. So how many strings we got here, that is only 1 here. एक स्ट्रिंग मिला तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस में यही लिख देंगे। तो दिस लैंग्वेज जनरेट्स ओनली 1 स्ट्रिंग। मे बी सम लैंग्वेजेस जनरेट मोर देन 1 स्ट्रिंग। तो आप वहाँ डिफाइन कर सकते हैं ए स्टार, ए प्लस, व्हाट टाइप ऑफ दैट। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी मैंने आपको बोला था सिंगल कैरेक्टर भी है तो भी वो एक लैंग्वेज है। आपने DFA NFA सब डिज़ाइन किया है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर कि कैसे हम यहाँ पर ग्रामर देखेंगे। Anybody have any query till now? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? Utkarsh has left the meeting. Okay. Nobody have query? Okay, let's continue that. Now
we are going to define here the regular grammar. Just now I told the basic concept of the grammar. What is a grammar and कैसे उसे define करेंगे. That means यहाँ पर आपका there are 4 tuples V, T, P, S, and that is nothing but the normal grammar. Now we are going to define here, okay, regular grammar.